کرو گے میرے ساتھ؟ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ حالت میں مجھے دھمکایا، میرے میاں کو دھمکایا، ہمیں بہت زیادہ دھمکیاں دی. ہم نے اندر آ کے جج صاحب کو بالکل اسی طرح ایز اٹ از چھوڑ کے جا رہی ہوں. مجھے کیا پتا کہ اس تالے کی بھی چابیاں ان گندے بدماشوں کے پاس ہیں. لوفر بدماش ہیں، یہ اچکے ہیں. نشے کی حالت میں تھے یہ لوگ، نشے میں دھت تھے. ان سے تو ہمیں آلریڈی پہلے اتنا جان کا بھی خطرہ ہے، عزت کا بھی خطرہ ہے. یہ تو آپ پھر بھگا دیے وکیل صاحب نے. وہ بالکل نہیں ڈرا، نہ پہلے پولیس سے ڈرا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ عدالت سے ڈرا ہے، بالکل بھی نہیں. اور اس کے ساتھ اس کے وکیل صاحب بھی پورے اس کے جرم میں برابر کے شریک تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد خاص عزیز دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ آج کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اسلام آباد جہاں کچھ عرصے پہلے ثنا یوسف اپنی جان کی بازی ہاری، جہاں پہ خواتین کی ہراسمنٹ کے معاملات سامنے آئے، اور اس حوالے سے میں ایک بات کی داد دوں گا کہ آج اسلام آباد سید ناصر صاحب نے جس طرح کمال بہادری کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ، اور ان کی ٹیم، انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے، انہوں نے مجرمان کو پکڑا اور خواتین کو انصاف دلایا اور تحفظ فراہم کرنے کی بھی اب بات کر رہے ہیں. وہیں پہ بھارا کاؤ میں چند دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. سینئر صحافی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کا، ریڈیو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، محترمہ شازیہ ملک صاحبہ آرٹسٹ ہیں، اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں. ان کے گھر گھس کر رات کے وقت ان کے جو مالک مکان ہیں، جو تھانے میں بات بھی رپورٹ ہوئی ہے، جو ایف آئی آر بھی ہوئی ہے اور اب معاملہ عدالت میں ہے، انہیں ہراساں کیا اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں مادام کے ساتھ، میں آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد، ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کو فوراً ٹیک اپ کریں. اور ایس ایچ او بھارا کاؤ سے بھی ریکویسٹ ہے، ایس ڈی پی او بھارا کاؤ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خواتین کی دادرسی کرنا، انہیں انصاف فراہم کرنا تو یہ ہمارے دین کا فرض ہے. تو میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، جتنی کر لی اتنی کافی ہے. مادام یہ بتائیے گا کہ یہ وقوع کیا ہوا، کیسے سارا معاملہ ہوا؟ سر یہ 23 تاریخ کو جو ہے رات 11:30 بجے کے قریب جو ہے 23 مئی جون 23 جون جی 23 جون 2025 جی 2025 کو جو ہے نا تقریباً رات 11:30 بجے ہم لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے. اور گھر میں میری والدہ ہے، میری بیٹی ہے، ہم لوگ تینوں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں. تو میں والدہ کو رات کی میڈیسن دینے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گئی اور میں ان کو میڈیسن دے رہی تھی. تو اتنے میں نا آواز آتی ہے دھڑل جیسے کوئی چیز کسی نے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی ڈکیت گھس آئے ہیں، کیا ہوا ہے. اور یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس مالک مکان کے پاس ڈپلیکیٹ چابی بھی ہے. باہر مین گیٹ کو اس نے چابی لگا کے تالا کھول کے یہ مین گیٹ سے اندر آیا. اندر آ کے ہمارا جو پھر مین انٹرنس ہے ٹی وی لاؤنج، وہاں سے اندر آیا. وہاں سے اس نے دروازے کو لاتے ماری ہیں، لاتے مار کے دھڑم اندر. جی مسٹر عدیل راجہ ہیں اور اس کے ساتھ نہیں یہ جی گجرات کے ہیں. میں جی جنوری سے اس مکان میں ہوں. کیا لین دین کا تنازع تھا؟ بالکل بھی نہیں سے منتھلی، بلکہ ہم لوگ ایڈوانس انہیں جو ہیں جنوری سے ہی پیمنٹ کرے جا رہے ہیں. کیا رینٹ ہے؟ 45,000 روپیہ رینٹ ہے اور میں انہیں جنوری سے ہی نا 2 ماہ کا دے رہی ہوں. اچھا، آپ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ڈپلیکیٹ ہے؟ نو بالکل بھی نہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں. میں نے جب اس کو دیکھا میں نے کہا کون ہے، اندھیرا بھی تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کوئی چور ڈاکو اندر گھس گئے. تو دیکھتی ہوں تو یہ اور اپنے اوباش لڑکوں کو آوازیں دے رہا ہے، آ جاؤ سارے آ جاؤ، چکو سامان تے سٹو انہاں دا سامان باہر، انہاں نوں بھی باہر سٹو، انہاں نوں میں دسنا ہونی. وہ کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی بالکل ویڈیوز، ہر چیز کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور اس کے لڑکوں کی ویڈیو بنی ہے. 15 پہ میں نے کال کیا، 15 پہ پولیس آئی، ہم لوگ تھانے میں گئے. ایس ایچ او صاحب نے اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک ایگریمنٹ بنا دیا کہ آپ ان کو اس طرح سے بے دخل نہیں کر سکتے. آپ تھرو پراپر چینل آئیں،
कोर्ट के थ्रू इन्हें नोटिस दे एसएचओ का बड़ा अच्छा किरदार रहा जी है। जी। तो उन्होंने इन्हें वो बना दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये अब लेकिन बात ये है कि क्या उन्होंने वजह बताई एसएचओ को कि वो क्यों आए? और इस तरह तो पाकिस्तान का आईन और कानून भी कहता है, बेशक मालिक मकान वो थे, लेकिन जब रेंट दे रहे हैं तब तो इनकी मलकियत है। तो आप जाहिर सी बात है एक बुरी नीयत से दाखिल हुए, वो कोई भी हो सकती है, वो तो कानून की गिरफ्त में आते हैं आपको। तो वो कहता है जी ये हमारा घर है, हम तो आएंगे और आप हमें रोक नहीं सकते हमारे पास। और उन्होंने उस एसएचओ साहब को उसने पूरा चाबियों का ना वो दिखाया। सही है। हाँ जी, सारे घर की चाबियां उसके पास थी। मैं तो लरज के रह गई। अच्छा, अब जब हम रात को वापस आए हैं तो अगले दिन को ये फिर आ गया अपने उन्हीं अबाइक साथियों को लेकर। मैंने अगले दिन जो गेट को यानी रात को भी आया और दिन को भी आया? जी, दिन को भी, उसकी भी वीडियो है। और एसएचओ की बात का भी कोई, यानी इसने पुलिस को भी खातिर में नहीं लाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइन और कानून को भी खातिर में नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये दिन को आया, मैंने फिर इसको, मैंने अंदर से लॉक चेंज किए हुए थे और अपने लॉक लगाए हुए थे, तो ये अंदर नहीं आ सके। मैंने इनको ऊपर छत से कहा कि वापस चले जाओ, मैं बिल्कुल नहीं तुम्हें इजाजत दे सकती अंदर आने की। तो कहते हैं हमें एसएचओ साहब ने भेजा। मैंने कहा एसएचओ साहब के पास जाओ, और उन्होंने फिर इनको भगा दिया। एसएचओ साहब ने, ये गए उनके पास, उन्होंने इनको भगा दिया। भगा दिया से मतलब क्या आप जाए, आप वहां क्या ढूंढने जा रहे हैं? उसके बाद फिर सर वो आलम ऐसा था, वो हालत ऐसी थी कि कोई, ये मतलब पाकिस्तान है जहां खवातीन, हमें तो कभी रात को भी जो है ना, आधी रात को मैं घर पे जाती हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे कभी खौफ नहीं आया कि ये हम अपने पाकिस्तान में रह रहे हैं, फिर कैपिटल में रह रहे हैं, जहाँ हमारी पुलिस है, फोर्सेस हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, वहाँ हम क्यों डरें? ठीक है, लेकिन इस बंदे को किसी चीज़ का डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसने फिर बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, मैं शॉर्ट करती हूँ बात, इस तरह बातें करेंगे तो बहुत बातें हैं बहरहाल जी। और फिर आपने आईजी साहब का जिक्र किया, एसएसपी साहब का जिक्र किया, एसएसपी ऑपरेशंस का जिक्र किया। उन्हें मैं फॉलो करती हूँ टिकटॉक पे, ठीक है, और मैं उन्हें देखती हूँ, मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और आज मैं जो है सबसे पहले एडिशनल सेशन जज जो है मलिक जहांगीर अवान साहब, ठीक है, उनके लिए मेरे यही कलमात हैं, यही अल्फाज हैं कि मेरी इतने दिनों की जो रियाजत थी, थकावट थी, एक डर खौफ की कैफियत थी, वो जज साहब ने आज उसको बहुत अच्छे तरीके से दूर किया। उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सरजनिश की, उन्होंने उसको वहीं टोका, रोका और उसे डांटा। वो अपनी रौनक में था, फिरौनियत में था, ठीक है। और मैं जी बहरहाल जी जज साहब ने भी उन्हें उसके बाद अदालत में भी कोई धमकाया शमकाया? जी, अदालत में मुझे धमकाया, मेरे मियाँ को धमकाया, हमें बहुत ज्यादा धमकियां दी। हमने अंदर आके जज साहब को बिल्कुल इसी तरह एज इट इज बता दिया कि जज साहब ये तो हमें धमकियां दे रहे हैं। जज साहब ने उसे भी बहुत टाइम दिया, ठीक है। पहली दफा उन्होंने कहा कि 11 बजे आप देख लें कि आपने क्या करना है, किस तरह से इस चीज को हैंडल करना है, आप आपस में पैचअप कर लें, जो आपने इनके साथ ज्यादती की है उसका अजाला करें आप, ठीक है। 9 बजे का टाइम था, 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया। ये बंदा नहीं, और उसका वकील भी साथ, ठीक है, वो मुझे डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर 6 डाले खड़े हैं, 6 डाले हैं, जो दुश्मनदार लोग हैं, इसकी पूरी साइड पे गोलियां लगी हैं। मैंने कहा जी ये मुझे दिखा चुका है, नंगा हो के मुझे दिखाता रहे कि ये सारी मुझे गोलियां लगी हुई हैं, ठीक है, तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अब आप भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं वकील साहब, वकील साहब आपकी माँ बहन बेटी नहीं है? फिर वहां से वकील साहब का रंग सुर्ख हो गया। मैंने कहा यहाँ सुर्ख हो गए हैं क्या? मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मेरे घर में जवान बच्ची है। ये इस तरह से दंदनाते हुए फिर रहे हैं, दंदनाते हुए अंदर आते हैं। मैं कहाँ जाऊं? मैं तो बड़े मजे से ताला लगा के, मेरी बेटी घर होती है, मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, तो मैं इतना बड़ा ताला लगा के तसल्ली करके जा रही हूँ कि यार मैं तो अपनी बच्ची को हिफाजत में छोड़ के जा रही हूँ। मुझे क्या पता कि उस ताले की भी चाबियां इन गंदे बदमाशों के पास हैं। लोफर बदमाश हैं, ये उचक्के हैं, नशे की हालत में थे ये लोग, नशे में धुत थे सारे के सारे। ये जितने 5-6 मैं आपको वीडियोस दूंगी, आप वो वीडियोस यहाँ लगाएं,
जिस दिन रात को ये आए हैं, जो इन्होंने गुफ्तगू की है, जो इनकी हरकतें थी, और उसके बाद अगले दिन ये जिस तरह से आए हैं और जो इन्होंने किया है, ठीक है। और आज जो इन्होंने अदालत में किया है, हमें बिल्कुल बाकायदा मुंह के ऊपर ये धमकियां दे रहे थे। उसके बाद जज साहब ने फिर वकील ने ये किया, उसने देखा कि यहाँ उस कहता है जब हम दोबारा पेश हुए जज साहब के आगे, सही, तो उसको वकील ने भगा दिया। कहता है वो जी फेंट हो गया था, उसकी तबीयत ऐसी है, इतनी बड़ी फाइल। जज साहब ने कहा ये बहुत गलत है। मैंने वहां फिर जज साहब को कहा सर इनसे तो हमें ऑलरेडी पहले इतना जान का भी खतरा है, इज्जत का भी खतरा है, ये तो आप फिर भगा दिए वकील साहब ने, हम किधर जाएंगे। इतने में उस बंदे ने मेरे हस्बैंड को कॉल करके धमकियां दी हैं। वो बिल्कुल नहीं डरा, ना पहले पुलिस से डरा है, ठीक है, और ना वो अदालत से डरा है, बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ उसके वकील साहब भी पूरे उसके जुर्म में बराबर के शरीक थे, ठीक है। हमने फिर जज साहब को वो भी रिकॉर्डिंग सुनाई जो हम अदालत के अंदर खड़े हैं और वो भाग गया और बाहर जाके धमकियां दे रहा है, ठीक है। और बात कहाँ पे आई है? अब वो भाग गया जी, ठीक है, उसके बंदे भी भागे हुए हैं। वो बिगड़े हुए नवाब हैं, बिगड़े हुए नवाब हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, उनके पास जो है वो सरशारी है। मुझे उनसे बिल्कुल इस टाइम मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, आप लोगों के सामने आने का मकसद ये है। मैं आज से 10 दिन पहले भी आ सकती थी, 15 दिन पहले भी आ सकती थी, लेकिन मैं नहीं आई कि चले मामलात जो है अदालत तक जाते हैं जी, पर्दे के अंदर हल हो जाए। लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल जो है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सड़क के ऊपर तन्हा खड़ी हूँ, ठीक है। जो बंदा हम अदालत के अंदर मौजूद है उसको पता है कि ये अंदर खड़े हैं और हमें धमकियां दे रहे हैं बाकायदा फोन करके, ठीक है। अभी हम साइबर क्राइम में भी और थाना रमना में एप्लीकेशन दे के आए हैं इसकी, वो जो इसने हमें धमकियां दी हैं जज साहब को भी सुनाई है। खुदारा हमारी इस्तों का इस बंदे से खतरा है, हमारी जाने छोड़ दे। ये मतलब इसका आधी रात को आने का मकसद क्या था, इसको पता था खवातीन अकेली हैं घर में। हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रही हैं। अल्लाह ताला सबकी माँ बहन बेटियों की इज्जत महफूज रखे। और मैं इस सारे मामले को बड़ी मैंने संजीदगी के साथ सुना है और काबिल तहसीन किरदार है जज साहब का। यकीनन इंसाफ फराहम होता है अदालत से तो ये मुआशरा भी कायम है, ऐसा नहीं है। और एक आम आदमी को अदालत रिलीफ देती है, इंसाफ देती है और इसका आप अमली नमूना देख रहे हैं। अगली तारीख क्या डली है जी? जज साहब ने उसकी बेल जो है वो नहीं आया और कैंसिल कर दी थी। और ऑर्डर अभी मैं आई हूँ आपके पास, तो ऑर्डर अभी नहीं लिखने हुए थे, तो ऑर्डर हमें मिलेंगे जब, जाहिर सी बात है अब आजकल में ऑर्डर्स आ जाएंगे और फिर भी हम पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन आईजी इस्लामाबाद से गुजारिश है कि इस सारे मामले को टेकअप करें और कौम की इस बेटी को, एक आर्टिस्ट के पास उसकी इज्जत होती है, वैसे भी एक आम आदमी है उसके पास इज्जत ही होती है, लेकिन एक वो शख्स जिसको 4 लोग जानते हैं, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है सोसाइटी में। कम अज कम आईजी साहब आर्टिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ देना आपको बुनियादी फ़राइज़ में से। और हम आप सैयदज़ादे हैं और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि एक सैयदज़ादा एक बहन बेटी की इज्जत के ऊपर जो बुरी निगाह डालने वाले हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।